and welcome guys to the SMS animation channel. Today we are going to make this game asset gun. You can see that it's really beautiful model and it has a really beautiful texture. So let's start to making this gun without wasting any time. So let's jump on this one. First take a cube. I would like to change the dimensions of this viewport. So jump onto this tab. यहाँ पे आप jump कर सकते हो. This is about the same properties. यहाँ पे unit में चले जाइए. Unit में जाके आपको meters को centimeter में convert करना है. That's your choice, guys. It is not compulsory. But if you would like to do that, because the gun size is a little bit smaller, so I don't need that much of high poly working. So that's why I'm making it a smaller thing. Okay. So now let's change the dimension of the cube. I will make it a 10 centimeter. And then press the Control A and apply the scale. So uniform scale will be the 1111. ठीक है, तो ये आपका clear हो जाएगा. Then let's jump into the edit mode. Scale it into the y-axis. Okay, I have scaled it. Then apply some loop cuts on this one, because I am going to apply the subdivision surface later on. So just giving us some boundaries. No, do not get some weird shapes on that one. Okay, let's done. Now I am just going to, first of all हमारा प्लान यही है कि हम एक बेसिक शेप मॉडल कर ले. हमारी जो गन है उसका एक बेसिक शेप मॉडल कर ले. ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर डिटेलिंग अप्लाई करेंगे. सो नाउ लेट्स जंप इनटू द बॉटम फेस ऑफ दिस. गो इनटू द राइट व्यू, सिलेक्ट द बॉटम फेस एंड देन एक्सट्रूड इट. देन मेक इट अ स्केल. मैं उसको वाई एक्सिस में स्केल कर रहा हूं. ओके, देन okay, one thing is I want to do that. I would need it a mirror. तो अभी हम क्या करें, मिरर मॉडिफायर पहले अप्लाई कर देते हैं. अप्लाइंग ऑल जेड एक्सट्रीम मोड में हम जंप करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं एंड देन लेट्स जंप इनटू द वन एंड अगेन सिलेक्ट दिस वन एंड देन एक्स एंड वर्टेक्स इसको डिलीट कर दिया. सो नाउ वी हैव द वन साइड. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द मिरर मॉडिफायर टू इट. सो जंपिंग इनटू द मॉडिफायर टैब एंड लेट्स अप्लाई द मिरर मॉडिफायर टू इट. ओके, एंड यहाँ पे क्लिपिंग आप ऑन कर दीजिएगा, विच इज गुड फॉर अस. ओके, कमिंग आउट फ्रॉम दिस एंड अगेन लेट्स स्टार्ट दिस. तो अभी मैं यहाँ से वापस बॉटम फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन अगेन एक्सट्रूडिंग दिस फेस. ओके, देन मेक इट स्केल इनटू द वाई एक्सिस. ओके, देन G and Y. Okay, and now I am going to select this loop. And just sliding G, Y. थोड़ा आगे की तरफ हम इसको स्लाइड कर रहे हैं. Then I am just selecting only this one and taking again G, Y. So getting some good shape. Okay, हमारा फ्रंट व्यू बेसिक जो हमें चाहिए था वो रेडी हो चुका है. Now let's make a back side. So I am going to select these two faces over here. यहाँ पे जो दो faces है उसको select करते हैं हम लोग. Then extrude it. As per your requirement you can extrude, guys. जो भी मॉडल आप क्रिएट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको रिच करना है. अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करके इसकी एज तक, इस बेस तक लेके आना है. सो फॉर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू मेक ऑन एज मोड ओवर हियर. दिस इज द स्नैपिंग मोड. तो यहाँ पे मैंने एज का स्नैपिंग ऑन कर दिया. देन आई एम गोइंग टू एक्सट्रूड दिस बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड सिलेक्टिंग दिस एज. नाउ यू कैन सी दैट द बेस लेवल इज द सेम. ओके, लेट्स गो अहेड. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फेस को स्लाइड कर रहा हूँ इनटू द वाई एक्सिस. प्रेस G एंड Y. तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे इसको स्पर्व कर दिया है. देन लेट मी मेक अ लूप कट ओवर हियर एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स ओवर फ्रॉम हियर. यू कैन इंक्रीज फ्रॉम हियर और यू कैन just applying before that you can scroll your mouse button, then you can increase that also. So that's up to you how you want to go. So I am applying 3 loop cuts over here. Now select this face and extrude it, and I am just going to extruding this face, but it's going too much upwards, so I don't need that much above. So what I will do, select it, that face is already selected, and then press G and Z, so it will come down over here. Okay, it's good. Then again I will apply the loop cuts on this one. Now what you can do, see, जैसे पहले हमने यहाँ से किया था प्रॉपर्टीज में जाके, उसकी जगह पे भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल R किया एंड इंक्रीज लाइक दिस वन.
सो ये आपका काम कर देगा। स्क्रॉल माउस को अपन घुमाएंगे तो ऑलरेडी लूप कट्स के नंबर बढ़ जाएंगे, सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे, एंड देन प्रेस द राइट क्लिक और प्रॉपर सेंटर में सेटल हो जाएगा। देन अगेन सिलेक्ट द दिस फेस एंड एक्सट्रूड इट वन। ओके, आई एम जस्ट एक्सट्रूडिंग। अब मुझे ये कहां तक चाहिए? ओनली ऑन दिस वन। तो लेवल हमें मेंटेन करना है। नाउ इट इज स्लांटेड, मुझे उसको जेड एक्सिस में, जैसे ये वाला पोर्शन पूरा फ्लैट है, ये थोड़ा टेढ़ा है, अगर आप देखोगे इट इज स्लांटेड और ये फ्लैट है, मुझे ये दोनों को कनेक्ट करना है। सो आई नीड दिस वन इज ऑल्सो फ्लैट। सो व्हाट आई विल डू, एस जेड एंड 0। तो अब ये प्रॉपर्ली फ्लैट हो चुका है। यू कैन सी दैट नाउ बोथ आर द सेम इन फ्लैट एंगल। नाउ लेट्स सी दैट अगर आप चाहे थोड़ा ऊपर लग रहा है तो सिलेक्ट दिस वन, देन प्रेस जी Z एंड यहाँ पे लेके आ जाइए, तो नाउ इट इज प्रॉपर्ली सेटल्ड ओवर दैट। नाउ व्हाट आई कैन डू, अब मुझे यहाँ पे भी लूप कट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। कंट्रोल R एंड स्क्रोलिंग दिस वन एंड अप्लाइंग दिस। ओके, डन। अब मुझे यहाँ पे एक और लूप कट अप्लाई करना है ऊपर की तरफ। डन। देन व्हाट आई विल डू, सिलेक्टिंग फेस मोड, यहाँ का एक फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों फेसेस, एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस टू फेसेस ऑल्सो, एंड देन प्रेस X एंड डिलीट द फेसेस। नाउ जंप ऑन टू द एज सिलेक्शन मोड, ऑल्ट एंड सिलेक्ट कीजिए ये एज को, एंड शिफ्ट एंड ऑल्ट ये एज को सिलेक्ट कर लीजिए, देन राइट क्लिक कीजिए एंड ब्रिज एज लूप्स। सो आपका ये लूप हो गया। नाउ यू कैन सी दैट हमारा बेस मॉडल रेडी हो चुका है गाइस। वी हैव क्रिएटेड आवर बेस मॉडल ऑफ द गन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सो यू कैन अंडरस्टूड दैट द बेस मॉडल ऑफ द गन इज ऑलमोस्ट रेडी। हमारा जो गन का बेस मॉडल है वो हमारा रेडी हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू मेक द डिटेलिंग ऑन दैट वन। सो लेट्स जंप ऑन दैट वन। अब हम उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। So now I am going to select this face. मैं यहाँ पे इसको select कर रहा हूँ and just getting extrude above. Then I am going to make scale onto the y axis and then little bit into the x axis. Okay. Then what I will do कि यहाँ पे जो edge है उसको मैं select कर रहा हूँ. Select the edge selection mode and press GG. GG करते हो तो सरफेस में ही आपका एज स्लांट करता है बराबर। अगर आप ओनली जी प्रेस करते हो तो whichever एक्सिस यू वांट यू कैन ट्रांसफर इट, बट जीजी करते हो तो जो सरफेस बना हुआ उसी सरफेस के ऊपर वो स्लांट करता है। नाउ सिलेक्टिंग दिस एज, ओके, एंड देन प्रेस GG अगेन। सो आई हैव स्लांटेड दिस वन। तो ये हमारा एक शेप रेडी हो चुका है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, सॉरी एक्सक्यूज मी, ओके, नाउ मुझे यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर बनाना है प्लस एक एम होल्डर, या एम जहां से लेते हैं वो वाला पोर्शन क्रिएट करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू जंप ऑन दैट वन। तो यहाँ पे अभी हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रेसिंग 3, एंड देन व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू मेक इट इंसर्ट लिटिल बिट। मुझे उसको लिटिल बिट इंसर्ट देना है, अप्लाई करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द इंसर्ट। नाउ यू कैन सी दैट द इंसर्ट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट वियर्ड। तो अभी मुझे क्या करना है, उसको इस एज, नॉट वियर्ड बट एक्जैक्टली इट्स हैपनिंग लाइक जैसे होना चाहिए, बट हमें क्या करना है, इसको इस एज के साथ कनेक्टेड करना है क्योंकि ये मिरर मॉडिफायर है। अगर मैं अभी इसको एक्सट्रूड करता हूं, यू कैन सी दैट बीच में क्या बनना है, वॉल बनना है, जो वॉल मुझे नहीं चाहिए। टू अवॉइड दैट वॉल, ये जो एज है इस एज के साथ ज्वाइंट होना चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, अनडू दिस वन, प्रेस आई। जैसे ही आपने आई इंसर्ट दे दिया, देन यहाँ पे बाउंड्री का ऑप्शन आप ऑफ कर दीजिए। सो इट विल बिकम लाइक दिस वन। नाउ अगेन आई एम मेकिंग अनडू एंड सी। एक बार ये अप्लाई कर देने का, जब भी आप इंसर्ट करोगे इट विल लुकिंग लाइक द बाउंड्री के टुवर्ड्स ही जाएगा। सो इट विल मेक लाइक दिस वन। नाउ इफ आई एम गोइंग टू मेक इट एक्सट्रूड, यू कैन सी दैट कि हमें जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही काम मेरे लिए हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक एम वाला पोर्शन क्रिएट करना है। सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करना है, आई एक इंसर्ट छोटा सा दे देना है ताकि आगे जाके मेरे को इश्यू ना करे जब भी मैं इसको सब डिवीजन सप्लाई अप्लाई करूं, इसको कुछ सपोर्टिंग एजेस मिल जाए। नाउ आई एम अप्लाइंग वन लूप कट ओवर हियर। यहाँ पे मैं लूप कट से अप्लाई कर रहा हूं। ओके, डन। सो नाउ सिलेक्ट दिस वन, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं एंड एक्सट्रूडिंग दिस वन, आई एम एक्सट्रूडिंग दिस। ओके, लेट्स सी दैट। हाँ, ये प्रॉपर मैनर्स में चाहिए मुझे 100% एक बेटर तरीके से। G एंड Z बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, उतना ऊपर भी नहीं लेना है। लेट्स सी इनटू द वन, जरूरत से ज्यादा ऊपर है, सो लेट्स ब्रिंग इट लिटिल बिट डाउन। ओके, इट्स गुड। तो यहाँ तक सही है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू कि यहाँ पे कुछ लूप्स अप्लाई कर देते हैं ताकि आगे जाके इसको भी सपोर्ट मिले व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सब डिवीजन सरफेस। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। नाउ लेट्स गो अहेड, ये वाले सरफेस में चलते हैं, ये वाला फेस सिलेक्शन ऑन करते हैं। देन अगेन आई विल डू मैं वापस से 2 लूप पर अप्लाई और कर रहा हूं यहाँ पे। सो लेट्स सिलेक्ट दिस वन एंड लेट्स सिलेक्ट दिस वन। आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से भी, अगर आपको प्रॉपरली मैनेज चाहिए। GG अगेन थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ लेके आना है। ओके, गुड। अगेन
सिलेक्ट दिस फेस, यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं उसको सेपरेट करना चाहता हूं। उस मैगजीन होल्डर शुड बी द सेपरेट फ्रॉम द गन, क्योंकि हम जब भी चाहे उसके अंदर वो जो भी मटेरियल हम यूज करना चाहते हैं, जो भी हमारा एमओ यूज करना चाहते हैं उसके अंदर रिफिल कर पाए। सो दैट काइंड ऑफ पार्ट वी हैव टू मेक। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पोर्शन को सेपरेट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट डी, सेपरेट इट, देन प्रेस पी एंड सिलेक्शन को सेपरेट कर दो। आपका एक यहाँ पे नया क्यूब क्रिएट हो चुका है, यू कैन सी इट ओवर हियर। देन प्रेस टैब, अगेन सिलेक्ट दिस पोर्शन एंड अगेन प्रेस टैब A and then extrude it, sorry extrude it. Okay, now look at that कि मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ, मुझे उसका हाइट मैनेज करना है, तो दिस हाइट विल बी द गुड। थोड़ा इसको लो पे लेके जाता हूँ, G and Z, हल्का सा मुझे लो चाहिए। देन अगेन आई एम अप्लाइंग द एक्सट्रूड एंड देन आई एम गोइंग टू मेक इट अ scale. But before making the scale, what I will do, I will select this one, Control A and apply the scale. So मैंने आगे भी बताया, इसका बेनिफिट ये होता है जब भी आप इसको छोटा करोगे तो इट विल मेक इट तीनों तरफ से एक जैसा प्रोपोर्शनली छोटा होगा, विच विल गुड फॉर अस। सो यू कैन सी दैट एक बेटर मेरे को आउटपुट मिल सकता है, सो विच इज रिक्वायर्ड। देन एस एंड एक्स ऑल्सो आई एम मेकिंग लिटिल बिट स्मॉलर, सो आई गॉट दिस वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी कुछ लूप्स अप्लाई कर देता हूँ। गुड, देन अगेन यहां पे भी 2 लूप्स लगा देते हैं हम लोग। ओके, देन 1 more over here। ओके, लेट्स गेम नेम दे देते हैं इसको, मेन बॉडी, इसको हम दे देते हैं एमओ। ओके, सो नाउ लेट्स डू दैट। तो यहां तक हमारा मॉडलिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आगे के पोर्शन में बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स सिलेक्ट दिस वन, एंटर। अब यहां से मैं एक और पोर्शन नीचे से निकालना चाहता हूं, अप्लाइंग दिस वन। तो यहां से जो ऊपर का एमओ जाने वाला है, विच इज कैरिड अवे द बॉटम पार्ट, ये लंबा रहेगा, भले हमने बनाया बट यू कैन एज्यूम लाइक दिस वन। सो ओके, लेट्स मेक इट एक्सट्रूड। अब मुझे इसको पूरा बॉटम तक लेके नहीं जाना है, सो जस्ट डू लाइक दिस वन। जितना लेवल तक चाहिए, प्रेसिंग एस टू दिस वन, यहाँ पे मैंने उसको छोटा किया है। देन मेकिंग जी, यहाँ पे मैं उसको जी एंड वाई करके थोड़ा आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। देन अप्लाइंग द लूप कट्स ओवर देयर, यहाँ पे मैं सेगमेंट्स बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ज्यादा सेगमेंट्स चाहिए मुझे, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द सेगमेंट्स ओवर हियर। यहाँ पे मेरे सेगमेंट्स आ चुके हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू मेक इट लिटिल बिट कर्वेचर, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ऐड द ऑन द प्रोपोर्शनल एडिटिंग एंड गोइंग टू सिलेक्ट दिस सम लूप्स फ्रॉम ओवर हियर। सो देन ऑल्ट, शिफ्ट एंड ऑल्ट, शिफ्ट एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट एंड ऑल्ट, मैंने ये लूप्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं। देन जी एंड आई एम प्रेसिंग द वाई, तो मैंने यहाँ पे करा दिया है, जितना मेरे को टर्न चाहिए था उतना दे दिया। देन जस्ट इंक्रीज दिस वन, सो ये प्रॉपरली कर्वेचर आपको मिल जाएगा। बेटर तरीके से आप छोटा करोगे, यू कैन गेट लाइक दिस वन। हल्का सी धीरे धीरे बढ़ा देगा, यू विल गेट द बेटर कर्वेचर शेप ऑन दिस वन। ओके, डन। अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा और छोटा करना चाहता हूँ, दिस फेस, सो लेट मी मेक इट एस एंड वाई अगेन। So I am just going to make it little bit smaller। तो मेरा इतना पोर्शन रेडी हो चुका है। Now let's do, see कि यहाँ इतना मेरा काम तैयार हो चुका है। नाउ अभी आगे की और चीजें हमें जो रेडी करनी है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। सो लेट्स गो अहेड। इसके ऊपर मैं कुछ लूप कट्स अप्लाई कर रहा हूँ। लेट मी अप्लाई द लूप कट्स एंड इंक्रीज द सेगमेंट्स ओवर हियर। सो आई हैव अप्लाइड द सेगमेंट्स। नाउ व्हाट आई विल डू, 3 कर रहा हूं और यहाँ पे मैं कुछ फेस सिलेक्शन शिफ्ट एंड ऑल करके आप सिलेक्ट करते जाइए इसको। सो नाउ वी हैव दिस वन, प्रेस ऑल्ट एंड ई एंड एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। तो यहाँ पे मैंने उसको नॉर्मल के अकॉर्डिंग एक्सट्रूड कर दिया है एक लिमिटेड लेवल तक। एंड देन यहाँ पे ऑन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अनइवन ये हो रहा है, तो यू कैन मेक इट ऑफसेट इवन, सो इट विल गिव यू द बेटर साइड रिजोल्यूशन। सो नाउ दिस पोर्शन इज रेडी फॉर अस। सेम चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए, इन फ्यूचर आई नीड इट, बट अभी के लिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। वन मोर थिंग आई नीड इट ओवर हियर, मुझे एक शेप यहाँ पे देना है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट लाइक दिस वन। सेम चीज यहाँ पे करना है मुझे, एंड देन आई विल प्रेस द ऑल्ट ई, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल। देन आई विल जस्ट रिक्वायर इट इनसाइड, मुझे इनसाइड की तरफ चाहिए, इज डन। देन व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई द लूप कट ओवर। यहाँ पे भी आपको ऑफसेट इवन बाउंड्री से यू कैन अप्लाई दिस लाइक दिस वन, बट आई थिंक इट्स गुड। जो बेसिक शेप मेरे पास आया था वो मेरे लिए सही था। देन अप्लाई द लूप कट ओवर हियर आल्सो। एक लूप मैंने यहाँ पे नीचे अप्लाई कर देना है और एक लूप मैंने यहाँ पे ऊपर अप्लाई कर देना है। ओके, प्रेस द E1 एंड F, सो इट विल गिव यू द बेटर आउटपुट ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे उसको प्रॉपर्ली अप्लाई कर दिया, डन। सो नाउ लेट्स डू, ये सपोर्टिंग लूप मैंने इसलिए अप्लाई किए हैं कि फ्यूचर में जब भी मैं सब डिविजन अप्लाई करूंगा, इट विल वर्क बेटरली फॉर मी। नाउ इफ यू कैन सी दैट कि अगर मैं इसके ऊपर एड मॉडिफायर में जाके सब डिविजन सरफेस अप्लाई कर रहा हूँ, एंड लेट मी मेक इट 2, 3,
Okay, now you can see that we are getting some beautiful shapes और यहाँ पे जहां भी मैंने subdivision surface के loop cuts अप्लाई किए, it's working really good। तो ये हमारे लिए सही एंड प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अभी के लिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। लेट्स जंप इनटू अगेन। यहाँ पे हम लोग चलते हैं वापस अपने काम के अंदर इनटू द टैब एडिटिंग मोड। ओके, नाउ यहाँ पे भी आगे मेरे को एक छोटा सा शेप देना है, सो लेट्स डू दैट। इसको मेरे को थोड़ा अप कर देना है। लेट्स मेक इट G and Z। मैं थोड़ा इसको अप कर रहा हूँ like this one little bit। okay, it's looking good। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रेसिंग द 2 एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। वो दबा दो आपका प्रोपोर्शनल एडिटिंग, आई वांट टू मेक इट ऑफ। यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड G and Z लिटिल बिट। यहाँ पे मैंने G and Z दिया है हल्का सा, गुड। सो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे एक प्रॉपर मेरा जो शेप मुझे चाहिए था वो मेंटेन होते हुए जा रहा है। आई नीड वन होल्डर अगेन ओवर हियर, जो यहाँ पे मेरा साइलेंसर या गन का जो पोर्शन है उसको होल्ड करेगा। सो आई एम मेकिंग इट एक्सट्रूड। यहाँ पे मैं उसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, देन मेकिंग इट स्केल। मैं यहाँ पे उसको छोटा सा स्केल भी कर दे रहा हूँ एंड आई एम गिविंग अ लूप कट ओवर हियर। एक यहाँ पे हल्का सा लूप कट भी दे देते हैं हम लोग, ताकि ये प्रोपोर्शनल उसको सेटअप दे दे बराबर, ज्यादा सर राउंडर शेप उसको मिले नहीं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग ओवर हियर। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यू कैन सी दैट। सो नाउ जंप आउट ओवर हियर, यू कैन सी इट्स लाइकिंग रियली गुड। ये सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से जा रहा है अभी तक। सो नाउ लेट्स गो अहेड। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। लेट्स क्विकली डू समथिंग rest of the things and rest of the details which you want to add। so now what I want to do, अभी यहाँ से मुझे एक लेदर बेल्ट क्रिएट करना है जो इसको कनेक्टेड गन को कहीं पे भी कमर पे लटकाना है आपको, या कहीं पे उसको माउंट करना है। so you can do it very easily। so that exactly I want to apply over here। so what I am going to do, यहाँ से इस फेसिस को सिलेक्ट करता हूँ, just pressing 3 and I am just going to select almost like okay this one। यहाँ पे ये फेसिस सिलेक्ट कर लो, P करके सिलेक्शन कर लो, अलग हो गया। टैब सिलेक्ट दिस अगेन, देन जस्ट जंप अगेन इनटू द एडिट मोड। A प्रेस कर लीजिए और T प्रेस कीजिए, एक्सट्रूड अलोंग द फेसिस। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे एक्सटर्नल साइड पे। देन ओके, इट्स गोइंग गुड। देन प्रेस टैब, सो इट्स लुकिंग गुड। यहाँ पे हम कुछ लूप पर अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल R एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई। इस तरफ अभी के लिए छोड़ देते हैं। फर्स्ट लेट मी अप्लाई ऑन द लूप कट ओवर हियर। एक लूप कट हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं अभी के लिए। नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे इसको क्लोज भी करना है। सो व्हाट एक्जेक्टली आई एम गोइंग टू, आई एम सिलेक्टिंग दिस फेसिस, select these two faces, then again make it extrude। मैं उसको हल्का सा एक्सट्रूड दूंगा, ज्यादा नहीं। I am just going to give it a little bit of extrude over here। मैंने यहाँ से उसको हल्का सा एक्सट्रूड देना है। and then what I can do, यहाँ से इन दो फेसेस को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, shift and again press a shift। you can see that the two faces just because of extrude we have created। then make it X एंड फेसिस को डिलीट कर दीजिए, देन प्रेस ऑल्ट और इस पूरे एज लूप सिलेक्ट में चले जाइए एंड देन एक्सट्रूड दिस एज into the x axis। okay, done। so now it is connected, just mirror modify is applied। so हमारा काम आसान हो गया है। now what we can do, ये पोर्शन हमारे लिए अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, दो लूप कट अप एंड डाउन में अप्लाई कर देते हैं। एक यहाँ पे डाल दिया है, दूसरा भी आई एम गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। so now you can see that we have completely created a belt। so now बेल्ट का एक हुक भी मुझे तैयार करना है। so for that what I can do, कि यहाँ पे मेरे पास शेप है, आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस टू शेप्स, प्रेस इंसर्ट। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, देन एस करके स्केल आउट कर रहा हूँ इस फेस को, सॉरी एक्सक्यूज मी, एस एंड एक्स एक्सिस में उसको स्केल कर रहे हैं हम लोग। ओके, डन। व्हाट आई कैन डू रादर देन दिस वन, लेट्स डू दैट। यहाँ पे एक लूप कट अप्लाई करते हैं हम लोग इनटू द सेंटर। यहाँ पे एक अच्छा सा लूप कट मैं अप्लाई कर देता हूँ। लेट मी डू द 2, यहाँ पे छोड़ देते हैं, देन आई एम गोइंग टू इंक्रीज द सेगमेंट ऑफ 2। ओके, अब मैं क्या करूँ, इन दोनों सेंटर फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक इट एक्सट्रूड अगेन। मैं उसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ यहाँ पे एंड देन व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल अप्लाई अ लूप कट ऑन दिस वन। हम इसके ऊपर एक लूप कट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द लूप कट ऑन दिस साइड। देन व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे चले जाओ अगेन, यहाँ पे इस फेसिस को सिलेक्ट कर लो, जो सेम प्रोसीजर हमने पहले किया बेल्ट के टाइम पे, वही वापस मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देन अगेन व्हाट यू हैव टू डू, सिलेक्ट द एज लूप सिलेक्शन एंड अगेन सिलेक्ट द लूप एंड देन एक्सट्रूड इनटू द एक्स एक्सिस। So it will connected like this one। तो मेरा हुक भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, जिसमें आप अपने किचन का माउंट कर सकते हो या जहां पे भी उसको एक रिंग लगा के माउंट करना, यू कैन डू दैट। सो नाउ यू कैन सी दैट आवर पोर्शन इज ऑलमोस्ट रेडी। हमारा बेल्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमारा गेम का मॉडल, हमारा मैगजीन कवर हैंडल, हमारा एम वाला पोर्शन, सो ऑलमोस्ट द थिंग्स आर गेटिंग रेडी। अभी एक और चीज जो बाकी रह गई है, दैट इज अबाउट द थिंग इज कि हमारा गेम का जो गन का ट्रिगर चाहिए। सो लेट्स जंप फॉर द ट्रिगर पोर्शन। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, लेट्स अप्लाई द सम लूप्स ओवर हियर। मैं यहाँ पे कुछ लूप्स अप्लाई करता हूँ। ओके, वन मोर ओवर हियर एंड वन मोर ओवर हियर। यहाँ पे दो जगह पे मैंने लूप्स अप्लाई कर दिए। देन अप्लाइंग दिस, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, रादर देन डूइंग दिस वन, लेट मी क्रिएट वन लूप ओवर इनसाइड। मैं यहाँ पे इनसाइड लूप क्रिएट कर रहा हूँ।
इंसर्ट की जगह पे ये मेरे लिए बेटर काम कर जाएगा, मेरा दोनों का सपोर्टिंग भी बन जाएगा मेरे एजेस के लिए, एंड प्लस मुझे गन का जो ट्रिगर क्रिएट करना है उसके लिए भी सपोर्टेड हो जाएगा। देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक इट एक्सट्रूड, मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूं यहाँ अंदर की तरफ, एंड देन मेकिंग आई टू इंसर्ट अ लिटिल बिट, मैंने यहाँ पे उसको एक इंसर्ट दे दिया है यहाँ पे। सो नाउ इट्स डन। अब क्या करेंगे, जो अंदर का शेप बना हुआ है, यू कैन डू द शिफ्ट डी, सिलेक्ट, देन P एंड सिलेक्शन, देन प्रेस टैब, और यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे, देन अगेन प्रेस टैब A एंड एक्सट्रूड अगेन, उसको हम एक्सट्रूड करके लेके आ रहे हैं, देन प्रेस S, यहाँ पे मैंने उसको S कर दिया है। देन व्हाट आई कैन डू कि उसको आप यहाँ पे जो मिडल एज है उसका लेट्स सिलेक्ट द एज सिलेक्शन एंड देन G एंड टेक इट बैक, मैं उसको यहाँ पे पीछे की तरफ लेके जा रहा हूं, एंड देन अप्लाई द सम लूप्स टू सपोर्ट दिस। ओके, सो जस्ट गिविंग अ लूप ओवर हियर, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट दे देना है, देन गिविंग द सपोर्ट बिहाइंड द बैक ओवर देयर, एंड लेट मी डू वन मोर सपोर्ट ओवर हियर। ओके, डन। सो नाउ यू कैन सी दैट हमारा गन का ट्रिगर भी रेडी हो चुका है, वी हैव मेक द ट्रिगर आल्सो, हमारा गन मॉडल, हमारा बेल्ट, ऑलमोस्ट द एसेट्स आर गेटिंग रेडी। एक और चीज अभी हमें करना रहा है कि जो गन का आगे का साइलेंसर जैसा एक पोर्शन क्रिएट करना है। सो लेट्स सिलेक्ट दिस पोर्शन, सिलेक्टिंग दिस, आई एम सिलेक्टिंग दिस फेसेस, go into the face mode selection and select this one, and then what I can do, I can just make one insert over here, okay, and then making S and X, I need a little bit squarer, then X and delete the faces। यहाँ what we can do, press N, यहाँ पे आपके पास edit में ऑप्शन आता है, you can convert it into the circle और just right click over here, sorry excuse me, यहाँ पे loop tools का ऑप्शन है उसमें चले जाइए, and you can make the option to the circle, जो आपका सिलेक्शन है स्क्वायर का उसको मैंने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है, and then X the faces, तो यहाँ पे मेरे पास एक पोर्शन पूरा बन के आ गया, it's really beautiful looking। So now what I will do, just create the select the edge selection mode, press alt, और इस वाली एरिया को मैंने सिलेक्ट कर दिया, then pressing the shift and D, sorry I am just pressing the shift and D and making a separate। then what I will do, just P and selection उसको अलग कर दिया है, टैप करके बाहर जाते हैं और उसको वापस जो हमने एज का सिलेक्शन निकाला है उसको ले पकड़ते हैं, एंड अगेन टैप A का सिलेक्शन करते हैं, देन मेकिंग एक्सट्रूड इनटू द Y एक्सिस, जो हमारा Y एक्सिस है उसमें हमें उसको एक्सट्रूड करना है, यू कैन सी दैट इट एक्सट्रूड ब्यूटीफुली। देन व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्टेड द फेस सिलेक्शन ऑन एंड देन सिलेक्ट द ऑल सराउंडिंग फेसेस, देन शिफ्ट ऑल्ट एंड E एंड उसको एक्सट्रूड फेसेस अलोंग द नॉर्मल्स। तो हमें बाहर की तरफ उसको मुझे अंदर की तरफ मुझे उसको एक्सट्रूड करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट एक्सट्रूड अ लिटिल बिट, मैं उसको यहाँ पे एक्सट्रूड कर रहा हूँ, जितना आपको चाहिए उतना ही आप एक्सट्रूड करना है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है, वॉट एवर यू लाइक। तो ये मेरा एक्सट्रूड हो चुका है। नाउ व्हाट आई विल, मुझे इसको सपोर्टिंग लूप्स अप्लाई करना है, ताकि जो अभी मैं उसको सब डिविजन सरफेस ऑलरेडी उसको अप्लाई है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है कंट्रोल बी, एक प्रॉपर हमें सिलेंड्रिकल शेप मिले, सो वी हैव टू अप्लाई दैट सब डिविजन सरफेस, अगेन कंट्रोल आर ओवर हियर, तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर लो, एंड देन कंट्रोल बी, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया है, देन अगेन व्हाट आई विल डू, अगेन इनसाइड पे भी मुझे वही चाहिए तो अप्लाई किया एंड कंट्रोल बी, तो ये मेरा बन चुका है गन का सिलेक्शन। देन लेट्स सी दैट कि कैसा हो गया। सो नाउ वी हैव द रेडी, हमारा आगे का साइज G एंड मैं उसको Y एक्सिस में पीछे ले रहा हूँ हल्का सा, ताकि ये गन के अंदर का पोर्शन रेडी हो गया। सो नाउ द बेसिक इज रेडी, हमारा बेसिक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब थोड़ा डिटेलिंग करना है, सो लेट्स डू द डिटेलिंग। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ एच करके। नाउ व्हाट आई विल डू, सिलेक्टिंग दिस वाला पोर्शन and I am going to apply some loop cuts over here, so just going to select this one, यहाँ पे मैं loop cuts apply कर रहा हूँ, okay, and then I will apply the two, मैंने यहाँ पे दो पोर्शन क्रिएट कर दिए। Now what I will do कि मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शंस करने जा रहा हूँ, I am selecting this portion with the face selection mode, let's make it little bit zoom, ओके तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, देन प्रेस द कंट्रोल करके आप इसका कंटिन्यू लूप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगेन प्रेस द कंट्रोल ओवर हियर, देन अगेन आई एम गोइंग टू, आई नीड टिल द एंड ऑफ ओवर हियर, मुझे यहां तक इसको लेके जाना है। सो इट्स डन, ये हो गया। सेम मुझे मिडल वाला भी चाहिए, तो यहाँ पे शिफ्ट करके सिलेक्ट किया, देन अगेन प्रेस द कंट्रोल, देन अगेन प्रेस द कंट्रोल, सेम सराउंड जैसे पहले किया वही चीज आपको करना है गाइस। ओके डन, देन व्हाट आई कैन डू, हल्का सा आई दिया है मैंने इंसर्ट, जरूरत से ज्यादा मत देना गाइस, जितना चाहिए उतना, जरूरत से ज्यादा नहीं देना। और मैं यहाँ बाउंड्रीज ऑन कर देता हूं, मुझे सेंटर में चाहिए, एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक इट एक्सट्रूड अगेन। ओके व्हाट आई कैन डू, मुझे बाउंड्रीज ऑन ही रखना है ताकि ये सेंटर में मुझे एक मोटा सा लुक मिले, सो इट्स गुड फॉर मी। ओके देन व्हाट यू कैन डू, ऑल्ट ई, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, तो ये मुझे अंदर की तरफ चाहिए, बाहर की तरफ नहीं, और बहुत ही हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो कितना डेप्थ वो पकड़ रहा है। सो डन एंड मेक इट टैग। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द ब्यूटीफुल डिजाइन ओवर हियर। मेरे पास
पास एक सुंदर सा डिजाइन बन के आ चुका है इस वाले पोर्शन में। लेट्स सिलेक्ट दिस वन, अगेन गो इनटू द टैब। अब मैं कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, ओके, देन मेकिंग आई एंड इंसर्ट इट लिटिल बिट। मैंने उसको इंसर्ट किया है एंड देन मेक इट एक्सट्रूड। मैं उसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ओके, एंड देन मेक इट लिटिल बिट स्मॉलर। मैं उसको अपना प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑफ कर दीजिए, एज स्केल किया है मैंने। देन आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट रोटेट इनटू द, यस, लाइक दिस वन, लिटिल बिट ऑफ डेप्थ, ओके। देन व्हाट आई कैन डू, यही वाले जो फेसेस बने उसको वापस में एक बार इंसर्ट कर रहा हूँ, इसको हल्का सा इंसर्ट कर रहा हूँ। देन आई एम गोइंग टू मेक इट एक्सट्रूड आउटसाइड, देन अगेन आई एम गोइंग टू मेक इट आई एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू मेक इट लिटिल बिट, ओके, डन। तो ये मेरे लिए सही है। सो यू कैन सी दैट आई हैव द डिफरेंट लुक ओवर हियर, बट ये जरूरत से ज्यादा बड़ा हो चुका है। सो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस, ओके, एंड देन G एंड X, so it can be little bit smaller। मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए उसको। Then press the tab, so it's looking good। अब यहाँ पे आप आगे जाके लूप्स अप्लाई कर सकते हो। तो what I can do, I am just going to apply the loop over here। मैंने एक लूप यहाँ पे अप्लाई करना है, एक लूप मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। So I can राउंडेड शेप हमें नहीं चाहिए, so that's why I am going to do that। 100% राउंड शेप हमें नहीं चाहिए, so exactly for that we are doing this thing guys। Okay, so now यहाँ पे भी एक लूप हम अप्लाई कर देते हैं। सेम चीज अबोव की तरफ थोड़ा एक लूप अप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी सेम चीज, हल्का सा ऊपर देन हल्का सा नीचे, देन लेट्स सी दैट। तो हाँ भाई, हमारे लिए प्रॉपर तरीके से एक चीज आ रही है। देन आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस फेस, अगेन सिलेक्टिंग, देन मेकिंग लिटिल बिट इंसर्ट। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया है इसको, एंड नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द प्रॉपर डायमेंशन। जो चीज मुझे बनानी है भाई, यहाँ पे प्रॉपर शेप चाहिए, वी आर रिटेनिंग दिस शेप। हमारे पास ये शेप प्रॉपर तरीके से आ रहा है, सो वी आर गोइंग गुड। अब यहाँ पे क्या करना है, ये एक शेप रेडी हो गया, देन लेट्स डू दैट। अब आगे का रिमेनिंग पोर्शंस भी स्टार्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ डिजाइनर पोर्शन क्रिएट करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस फेसेस। मैं यहाँ पे इन फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई वांट टू मेक इट समथिंग डिफरेंट ओवर हियर, मेकिंग आई। मैं एक हल्का सा इंसर्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन गोइंग टू मेक इट एक्सट्रूड। मैं उसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, सॉरी, मेक इट एक्सट्रूड। मैं उसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ अंदर की तरफ हल्का सा, ओके, एंड देन अगेन प्रेसिंग द आई। यहाँ पे एक छोटा सा इंसर्ट देना है मुझे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ा इंसर्ट नहीं देना है, हल्का सा मैंने इंसर्ट दे दिया। देन सिलेक्टिंग कंट्रोल प्लस अगेन शिफ्ट डी आउट एंड देन P एंड सिलेक्शन। मैंने उसको सिलेक्शन कर दिया, टैब अगेन सिलेक्ट दैट पोर्शन A, and now I want to extrude it, so I can press Alt and E, extrude faces along normals। मैं उसको अभी बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ओके। जितना चाहिए उतना ही करना है, जरूरत से ज्यादा नहीं, so it's good for me। Then jump out over here, so you can see that we have a separate loop। यहाँ पे मेरे पास एक सेपरेट लूप बन गया गन के ऊपर, what exactly I need। तो ये भी मेरे पास यहाँ पे तैयार हो चुका है। Now another properties we want to design कि मुझे इसके ऊपर भी कुछ चीजें बनानी है, so let's jump on this one। ओके, ये वाला जो मेरा पोर्शन है उसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। सिलेक्ट दिस, ओके, देन व्हाट आई वांट टू डू, यहाँ पे एक दो लूप कट्स अप्लाई कर देते हैं हम लोग। कंट्रोल आर, लेट्स अप्लाई द लूप कट ओवर हियर, वन मोर कंट्रोल आर, कंट्रोल जेड, ओके, कंट्रोल आर, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर, ओके। यहाँ पे भी एक लूप कट हमने अप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट आई एम, वन सेंटर लूप कट आई नीड ऑल्सो, एक छोटा सा सेंटर लूप कट भी मुझे चाहिए। नाउ व्हाट आई कैन डू, यहाँ से मैं इसको फेसिस को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऑल्ट 3 दबा दीजिए, देन ऑल्ट एंड शिफ्ट। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए ऑल्ट एंड शिफ्ट, एंड देन अगेन ऑल्ट एंड शिफ्ट। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है। मुझे पीछे वाले पोर्शन नहीं चाहिए गाइस, आई डोंट नीड दिस वन। मुझे यहाँ पे ये वाले पोर्शंस को कुछ नहीं करना है, सो आई एम जस्ट डिसेलेक्टिंग दिस वन, देन ऑल्ट एंड ई अगेन। व्हाट आई कैन डू, प्रेस द ऑल्ट एंड ई, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, एंड मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, एंड देन लीव इट, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन एंड टैब। तो यहाँ पे मेरा ये पोर्शन बन चुका है। सी द डिजाइन वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, यू कैन क्रिएट बाय योर साइड। जैसे आपको चीजों को जनरेट करना है, दैट यू कैन डन, बराबर आप उस हिसाब से उसको जनरेट करो प्रॉपर तरीके से। सो नाउ इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, ये सही ढंग से दिख रहा है। अब क्या करना है भाई, देख लो चारों तरफ के भी आपका प्रॉपरली मॉडल जा रहा है, नहीं जा रहा है, 100% लूप कट्स आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं। सो ऑलमोस्ट आई हैव डन। यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है कि आई कैन डिफाइन समथिंग ओवर हियर मोर। तो यहाँ पे एक अच्छा सा लूप कट अप्लाई करता हूँ, लिटिल बिट ओवर हियर, थोड़ा अब एक नीचे की तरफ भी मुझे चाहिए जो प्रॉपर मुझे आउटपुट दे दे। सो इट्स गुड वन ऑल्सो ओवर हियर। वन मोर थिंग, आई वांट टू अप्लाई वन लूप ओवर हियर। एक छोटा सा लूप मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देना चाहता हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट पूरा प्रॉपर तरीके से बनते हुए। तो यहाँ पे देखो थोड़ा चेंजेस हो गया है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिलेक्ट दिस वन एंड अप्लाइंग द लूप कट ओवर। यहाँ नीचे भी मेरे को भी एक लूप कट अप्लाई करना पड़ेगा। इवन फ्लिप कर दीजिए इसको, तो एक प्रॉपर लूप कट यहाँ पे भी हो जाएगा। सो सेटल इन प्रॉपर डाउन, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा, ताकि कोई
इफेक्ट गलत ना जाए। सेम चीज मुझे यहाँ पे भी हर जगह पे कुछ लुक कट्स को अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द बेटर लुक। Okay, done. Same चीज मुझे यहाँ पे let's see that हाँ एक यहाँ पे मुझे look cut चाहिए नीचे की तरफ and just going to apply small look cut over here, then one more small look cut over here. यहाँ पे भी छोटा सा look cut मैं apply कर देता हूँ. So let's see that ये proper हो रहा है, it's going good. यहाँ पे अभी ये करना, इसको hide करके देखना, it's also looking good. ये वाला portion भी proper ready हो चुका है. Now let's jump on to this one, तो इतना ही हमारा तैयार हो चुका है, let's looking good. So ये हमारा यहाँ तक का पूरा proper से guys, you can see that Our basic model is ready. हमारा गन का प्रॉपरली एक बेसिक मॉडल तैयार हो चुका है. You can see that almost the basic model is ready. You can add much more details inside that one. हम यहाँ पे कुछ और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं. So that will be converted. That we will do into the next session of this modeling. So thank you very much guys. I hope you enjoy this video and you can see that कि हमारा जितना बेस मॉडल वाला एरिया था we have almost make it clear. हमने उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लिया है. So in the next session we are going to add some details on this gun and then we are going to do the texturing. Thank you very much guys. Take care and have a nice day. Goodbye.